तो NISM रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 5 इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें अपन क्या कवर करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस, रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन इक्विटी रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सिक्लिकल एंड सेक्युलर इकोनॉमिक ट्रेंड। ठीक है, तो व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स is the study of how people make choice under condition of scarcity and impact of those choice for people at individual level and society at macro level. Economic analysis of human behavior begin with the assumption that people are rational, they have well-defined goal and try to achieve them at best they can. In trying to achieve their goal, people normally face trade-off. Resource both material and human are limited. Making one choice would generally mean letting go of something else. It requires prioritization of needs and want and allocation of limited resource to the desired goal. ठीक है. Although there are several branches of economic analysis, first is micro and macro are the most well known. As the name indicates, microeconomics is the study of economics on a smaller, more detailed scale, and macroeconomic is the study of economic as a larger, broader scale. ठीक है. Basic principle of economics. Microeconomic is the study of behavior of individual and their decision on what to buy and consume based on prevalent price, which in turn signal where the economy has to direct its productive activity. The philosophy of microeconomic is that price and production level of good and service in economy are driven by consumer demand. Microeconomic focus on driver of decision making as well as that in which individual decision affect the overall supply and demand and supply of particular good and service in economy in their price. Microeconomy also deal with the theory of the firm extending the concept of individual. Here it is deal with how firm adopt different strategy to increase their profit. It deal with the decision making process at the level of input, output, price, production level and profit loss of individual firm. The importance एंड यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज ब्रीफ अंडर. अब यहां से शुरू थी मेन कहानी की इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक. Microeconomic help us understand how the price of product and service get determined in economy, how individual and firm behave with regard to those price, and how goods and services economy are distributed among its various participants. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक से अपने को क्या समझ में आता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करना है इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक. ठीक है. Basic principle of macroeconomics. Macroeconomics is the study of big picture of economic. While micro focus on individual household, macroeconomic deal with economy as a whole. In other words, the focus of macroeconomy is on factors that influence aggregate supply and demand in economy such as unemployment rate, gross domestic products, overall price level, inflation, saving rate, investment rate. Most of these factors are highly affected by change in public policy. Two major influencer of public policy in economy are the government and central bank. Central bank means just like RBI. Decision of government known as fiscal policy. जो गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसीज. एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक नोन एज मॉनेटरी पॉलिसीज. तो ये जो दो पॉलिसीज रहती है वो इफेक्ट करती है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को. The late John Maynard Keynes laid great
emphasis on macroeconomic analysis. His work captured in the book General Theory of Employment, Interest and Money is quite revolutionary and brought drastic change in economic thinking. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे हेल्प मिलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमिक, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ. मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस अंडरस्टैंड ड्राइवर ऑफ इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ इकोनॉमिक. Macroeconomic model help government and central banker formulate economic policy for achieving long-term economic growth with stability. Macroeconomic help us understand various aspects of international trade of goods and service, just like export, import, balance of payment, exchange rate dynamics. Macroeconomics also facilitate understanding on how interlinkage across the economic work. Introduction to various macroeconomic variable. Government and central bank in any economy as policy maker strive to promote economic as stability and growth. The continuous attempt is to implement policy which ensure low employment rate, price stability with low inflation rate, steady growth in economic output. In spite of best intention and effort of policy maker, economy go through the cycle of boom and bust. ठीक है. तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक जस्ट लाइक आरबीआई, उनका क्या काम होता है कि इकोनॉमिक को में स्टेबिलिटी बने रही, ग्रोथ भी बने रहे. ठीक है. तो उसके लिए वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो रहना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी रहना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट भी लो होना चाहिए, ग्रोथ इकोनॉमी में बने रहे. तो इकोनॉमी भी कैसे ग्रोथ, कैसे साइकिल्स में जाती है, बूम भी होता है और बस्ट भी होता है, जिसको अपन आगे आने वाले टाइम में और डिटेल में स्टडी करेंगे. There are multiple variables that influence the outcome, and it may not be possible to control all of them. RBI attempt to tame the high inflation in India 2011, 12 and 13. आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2011, 12, 13 में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था. ठीक है, कि उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो, जो कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी भी है कि किसी भी देश में जब इन्फ्लेशन हाई रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है. उसके बाद भी जो रिजल्ट आया, जो फूड प्राइस है वो रिमेन्स हाई, उस समय भी हाई ही रहे. तो पॉलिसी मेकर इन डिफरेंट कंट्री मे टेक डिफरेंट रूट टू अराइव द सेम कॉमन गोल डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलेंट देयर. और इकोनॉमिक इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑन ईच टर्म, अपन चाहें तो पूरी एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं केवल इकोनॉमिक स्टडी या इकोनॉमिक को पढ़ने में. कई लोग एमएससी इकोनॉमिक्स भी करते हैं. ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स भी होता है. ठीक है. तो अब मेन है नेशनल इनकम. अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज डिफाइंड थ्रू वैरायटी ऑफ मेजर्स. ठीक है. अब नेशनल इनकम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? पहला जीडीपी से और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से. कंप्यूटेशन ऑफ दिस नंबर इज होमोजेनियस टास्क इन टर्म ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इज प्रोसीडिंग. नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड थ्रू थ्री मेथड. तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय इनकम कितनी है, उसको थ्री मेथड से डिफाइन करते हैं. पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड होता है इनकम मेथड, थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, ये तीन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आते ही है. नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आते हैं. प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. ठीक है. तो एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस जो फ्लो हो रही है इकोनॉमिक में, डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, ये तीन जगह से जो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, इससे डिफाइन करते हैं.
Economists calculate money value of all final goods and service produced in economy during a specified period. Final good refer to only those which are consumed by economic participants. तो फाइनल गुड्स के प्राइस, ठीक है, या वैल्यू और सर्विस जो अवेलेबल है या जिसको कंज्यूम किया गया इकोनॉमी यानी कि पब्लिक के द्वारा, उसको काउंट करना है, जो इंटरमीडिएट है उसको नहीं। ठीक है, फाइनल गुड्स या सर्विस, तो उसको कितना कंज्यूम किया गया, उसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। Product method deal with the economic sector wise. The total output in the economy is computed as the sum of output of various sectors. ठीक है, तो कितने आउटपुट निकल रहे हैं वेरियस सेक्टर से, ठीक है, उससे। सेकंड होता है इनकम मेथड। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज एग्रीगेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन द इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी में एक एक इंसान की कितनी एग्रीगेट इनकम है उससे डिसाइड करते हैं इनकम मेथड। रॉबर्ट कियोस्किन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिवाइड द होल वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन 4 ब्रॉड कैटेगरी। पहला होता है एम्प्लॉइज, जैसे लेबर और अदर एम्प्लॉइज जो भी सैलरी पा रहे हैं, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय अर्न वेज एंड सैलरीज, प्रोफेशनल अर्न देयर इनकम बेस्ड ऑन देयर सर्विस। प्रोफेशनल्स में कोई भी आ सकता है जो अपना सर्विस दे के इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर यानी जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिजनेसमैन। इन्वेस्टर जो अपना कैपिटल में रिटर्न जनरेट कर रहे हैं या लैंड्स में, जमीन में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उससे जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इन सब का टोटल करके जो इनकम आती है उसको नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी कहा जाता है। इनकम मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया। एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रहे हैं, इससे डिसाइड होगा। ठीक है, expenditure method, as all the goods and service produced in economy are bought by someone. National income may be calculated from consumption, and expenditure method under attempt to undertake the same philosophy while computing the national income. Consumer in a economy are broadly divided into 3 categories: individual, corporate, and government. An economy would have a export and imports. Export यानी people of foreign countries spending on goods and service produced by the economy। यानी एक्सपोर्ट यानी कि हमने विदेश को विदेश में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की। इंपोर्ट यानी कि हम लोग विदेश से जो सर्विस अपने पास मंगाते हैं। ठीक है, अगर उसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड फॉर द सेम बाय द इकोनॉमिस्ट व्हाइल अराइविंग द नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड। The aggregate demand for goods and services is computed as the sum of private consumption, government spending, gross capital formation and net export। ठीक है, तो जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन कितना हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, ग्रॉस कैपिटल कितना फॉर्म हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। ठीक है, in practice all three counting method produce similar result with minor difference for several reasons. National income is one of the most important statistics for country. Follow for some of the use of national income statistics. Level of economic welfare and growth. National income reveal that overall performance of country during a given financial year with help of statistics and per capita income. ठीक है, इसका क्या क्या है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ का पता चलता है नेशनल इनकम से ना। सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमी। इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन इकोनॉमिक्स। यानी कि इन चारों में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। The product method identifies sector in which primary contribution of country GDP and rate of growth of different sector in the economy. Service sectors constituent
कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ इंडिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। सपोर्ट टू फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। अब तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम से अपने को फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट या आरबीआई या बैंक्स बनाती है ना, उनको भी बहुत सपोर्ट मिलता है कि हाँ, स्टेटिक सच एज सेविंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हेल्प पॉलिसी मेकर इन टेकिंग रिक्वायर्ड मेजर टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। तो अपने गोल डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एज डिफाइंड अबव देयर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट इन इकोनॉमी। तीन तीन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। सेविंग डिफाइंड एज इनकम ओवर एक्सपेंस। सेविंग किसको कहते हैं? जो हमारी इनकम है, आई, और उसमें से अपन ने जो खर्च किया उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको अपन सेविंग कहते हैं। एक होता है पर्सनल सेविंग जिसको सेविंग ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो उन्होंने अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कॉर्पोरेट में, तो वो होता है सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग। सेविंग ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेविंग। ठीक है। रेयरली गवर्नमेंट जनरली रन बजट डेफिसिट्स। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट एंटाइटी में बी क्लब टुगेदर एज प्राइवेट सेविंग। ठीक है। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट को क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेविंग की कैटेगरी में आता है। इकोनॉमिस्ट अराइव एट नेशनल सेविंग बाय समिंग सेविंग ऑफ देस थ्री। ठीक है। तो नेशनल सेविंग कहाँ से डिसाइड होती है? तीनों, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेविंग को, तीनों को कैलकुलेट करके यानी कि सम करके अपन नेशनल सेविंग निकालते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेविंग डजंट मीन इन्वेस्टमेंट। अपन ने सेव किया इसका ये मतलब नहीं है अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है। Saving are to be channelized toward productive revenue called investment, given to corporate or government to invest to generate further earning. When saving are turned in investment, they take the shape of some financial instrument. जब अपन ने कुछ पैसे सेव किए हैं उसको इन्वेस्टमेंट में टर्न किया जाता है तो तीन इंस्ट्रूमेंट में ही सेव होते हैं, इक्विटी, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड अदर टू ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम सेवर टू यूजर हु एक्सपेक्ट टू एम्प्लॉय दिस सेविंग टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो अपनी सेविंग किसके पास जाती है? इन्वेस्टर यानी कि जिनको जरूरत है, जिनको कॉर्पोरेट में जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट क्या करती है? उस पैसे को अपनी कंपनी में लगाते हैं एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है। और जो रिटर्न आता है उसको अपने को वापस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा है। ठीक है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल banks continuously focus on facilitating the conversion of saving into investment through creation of efficient and effective financial market। गवर्नमेंट एंड आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो मिलके क्या करते हैं कि ऐसा अपने को इफिशिएंट फाइनेंशियल एंड इफेक्टिव मार्केट प्रोवाइड करते हैं जिसमें अपन इजीली इन्वेस्टमेंट कर सके। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ईज ऑफ कन्वर्जन, इज सिंप्लिसिटी इन ट्रांजेक्शन, सेफ्टी इन डीलिंग, लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन। तो ये क्या होता है? इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एंड इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? इजी ऑफ कन्वर्जन, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, सिंप्लिसिटी इन ट्रांजेक्शन, सेफ्टी इन डीलिंग, लो कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस। ठीक है। हायर लेवल ऑफ सेविंग, हायर कन्वर्जन इन दो सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर गुड फॉर इकोनॉमी। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना ज्यादा अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल देता है। ठीक है। यहां तक कोई ऐसा डाउट? बहुत थ्योरेटिकल है ये, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। हमको पता तो सब कुछ है, ये सब पता है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आजकल हर इंसान को पता है, लेकिन जो टेक्निकल भाषा है, ठीक है, थ्योरेटिकल जो भाषा है उसको भी समझना जरूरी है एग्जाम में अगर अच्छे से स्कोर करना है तो, है ना। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट।
ऑफन पीपल हियर सेइंग दैट थिंग हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हमेशा आज के डेट के हम लोग हमेशा बोलते हैं हर चीज महंगी होती जा रही है, समय जितना तेजी से जा रहा है, ठीक है, तो क्यों एक्सपेंसिव हो रहा है? आंसर है इन्फ्लेशन, महंगाई दर, महंगाई। Inflation is defined in the general increase in price of goods and service in economy leading to an erosion of purchasing power of money. इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। एक तो ये तो बढ़ ही रहा है प्राइस, उससे क्या होता है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी वो कम होते जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इफ 1,000 रुपीज आर पुट अवे इन ड्रॉवर, व्हाट वुड हैपन टू मनी आफ्टर 1 ईयर? इट वुड बी द सेम 1,000 आफ्टर अ ईयर, बट इट वुड बाय लेजर गुड। यानी कि आज जो 1,000 रुपए अपन एक साल के लिए किसी ड्रॉर में रख देते हैं, और सेम 1,000 रुपीज को अगर अपन वापस मार्केट में लेते हैं, तो कोई भी सामान अपन खरीदने जाए तो अपने को उसके लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है, या हमें सामान उतना प्रोडक्ट जो है कम मिलेगा। ठीक है, हर जगह वही है। हाउ मच लेस रुपीज 1,000 वुड बाय टुडे इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इन फंक्शन ऑफ हाउ एक्सपेंसिव गुड सर्विस वुड हैव बिकम ओवर द पीरियड। अब जैसे महंगाई दर 8% है, मान लीजिए, तो 1,000 रुपए की जो चीज है एक साल बाद 1,080 में मिलेगी, क्योंकि 80 रुपए उसका इन्फ्लेशन जो रेट दर है वो भी इंक्लूड हो जाता है। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज बाई डिमांड पुल फैक्टर और कॉस्ट कॉस्ट पुल फैक्टर। An increase in price of good and service because demand being excess of availability supply, it is called demand pull inflation। एक इन्फ्लेशन कैसा होता है कि अपने पास डिमांड बहुत है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो डिमांड पुल फैक्टर है और कॉस्ट पुश फैक्टर होता है। इसको अपन बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, अचानक से टमाटर प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल्स की डिमांड बढ़ती है तो क्रूड ऑयल्स भागते हैं। अन इंक्रीज इन प्राइस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। अब किसी भी प्राइस का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो उसके कारण उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक अपन ने देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। To diffuse the inflation, policymaker adopt several measures to reduce the demand and increase the supply. Generally, inflation is measured in two way। दो टाइप से मेजर करते हैं, एक होता है होलसेल लेवल इन टर्म ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेल लेवल का अगर देखना है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इकोनॉमिस्ट डिफाइन अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन जनरल कंजप्शन इन इकोनॉमी एंड कंप्यूट इट्स प्राइस बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस डिफाइंड WPI and CPI। Statistics on WPI CPI over several years provide trend in inflation number and feed important put for policy measure by both government and central। Interest and inflation are closely linked। Interest जो ब्याज दर होती है ना, और इन्फ्लेशन, ये दोनों का लिंक बहुत सेम है। हायर इन्फ्लेशन डिमांड हायर रेट फॉर पीपल टू गिव गेट मोटिवेटेड टू सेव। अगर महंगाई ज्यादा है और उस समय अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो पब्लिक क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करेगी। एज दे सेव मोर एंड कंज्यूम लेस, कंजप्शन गोज डाउन। तो उससे क्या होगा? पब्लिक सेव ज्यादा करेगी, कंज्यूम कम करेगी, तो कंजप्शन गोज डाउन। ऑन अदर हैंड हायर रेट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है एंड में स्लो डाउन द ओवरऑल इकोनॉमिक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाता है। हायर रेट इफेक्ट सम सेक्टर सच एज रियल एस्टेट ऑटो मोर इंटेंसली। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि मिडिल क्लास जो इंसान है वो कार और रियल एस्टेट, ये दो चीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा घर खरीदना, कार खरीदना। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे तो लोग क्या करेंगे?
लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, वो पसंद करेंगे कि इसको सेव करके रख देते हैं, ब्याज दर ज्यादा मिलेगी। हायर इन्फ्लेशन रिड्यूस द डिस्क्रिशनरी इनकम दैट पीपल हैव एंड इम्पैक्ट देयर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, यहां तक कुछ समझ ना आया तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक के लिए वो खतरा होता है, लेकिन जब महंगाई दर ज्यादा होती है तो महंगाई दर को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। यहां तक अगर ऐसा कुछ समझ ना आया हो तो। एम्प्लॉयमेंट रेट, अगला होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक होता है एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि unemployment rate refer to the eligible and willing to work unemployed population of the country in percentage term। ऐसे वर्कर्स जो एलिजिबल हैं काम करने के लिए और काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए खतरा है। यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग, यानी कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, एलिजिबल है, काम भी करना चाहते हैं। ड्यूरिंग अ स्लो डाउन, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है। ड्यूरिंग अ एक्सपेंशन फेज द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल। और जब इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होता है। ठीक है, जिससे जॉब क्रिएट ज्यादा से ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है। हायर एम्प्लॉयमेंट मीन्स इनकम विच इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ पीपल टू स्पेंड। ठीक है, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जितनी ज्यादा नौकरियां मिलेगी, उतना ज्यादा आदमी का इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ने से पब्लिक क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है, पोटेंशियल ग्रोथ मिलती है इकोनॉमी में। ठीक है, द रिवर्स वुड बी ट्रू फॉर इकोनॉमी गो थ्रू टफ टाइम। अगर इकोनॉमी खराब टाइम में जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, जिससे लोग क्या होता है कि लोग कम स्पेंड कर पाते हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होता है। ठीक है, फ्लो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों पूछता है एग्जाम में। फॉरेन कैपिटल फ्लोज टू अ कंट्री कैन बी इधर इन एक्टिव फ्रॉम नोन एज एफडीआई, या कोई देश है, यानी कि कोई बड़ी कंट्री है, डेवलप है, वो हमारे देश पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एक्टिवली, यानी कि वो अपना प्रोडक्शन यूनिट या अपना ऑफिस, ठीक है, या जो भी तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पैसिव फ्लो जो होता है कैपिटल का, वो होता है शेयर मार्केट्स में, बॉन्ड्स में, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। जो बोलते हैं ना कि डेली फॉरेन एफपीआई, विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं या विदेशी निवेशकों ने बहुत ज्यादा पैसे मार्केट में लगाए, तो उसको एफपीआई बोला जाता है। In case of FDI, investing entitle participant in decision making and drive the business. However, portfolio investment, as a name indicate, in investment in market equity and bond by the FPI without any management participant। तो वो क्या करते हैं FPIs में, equity और bonds में investment करते हैं। There are upper limit on the individual and combined holding by FPI in the paid up capital of Indian companies। तो अपर लिमिट होती है उनकी इंडिविजुअल और कंबाइंड होल्डिंग बाय एफपीआईज की। एफडीआई इज वेलकम बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एंड हैज मल्टीपल बेनिफिट इन एडिशन टू ब्रिंग कैपिटल टू द कंट्री। जैसे एप्पल ने अभी इंडिया में प्लांट्स लगाए अपने, या बहुत सारी विदेशी जो कार की कंपनीज हैं वो आज के डेट में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या अपने कार्स को असेंबल कर रही है। तो उससे क्या है,
रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। तो एफडीआई हमेशा किसी भी देश, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमेशा फायदेमंद ही रहा है। किस तरीके से फायदेमंद है? पहला, जॉब क्रिएशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, न्यू मैनेजरल स्किल सीखते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अपने को मिलती है। और एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड स्टेबल मनी। एक बार एफडीआई आता है तो इतनी आसानी से बंद करके नहीं जाता वो किसी भी देश में, है ना, उसका लंबे समय तक फायदा मिलता है। एफपीआई मनी इज कंसिडर एज हॉट मनी। दो एफपीआई के पैसे को हॉट मनी कहा जाता है, एज दे कैन पुल आउट मनी एट एनी टाइम, क्योंकि वो कभी भी अपने पैसे मार्केट से निकाल सकते हैं। विच कुड क्रिएट सिस्टमिक रिस्क। उनसे क्या होता है? एफपीआई से सिस्टमिक रिस्क आता है मार्केट में। ठीक है। फिर आता है फिस्कल पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक। फिस्कल पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नमेंट। Fiscal policy contain the measure of government which deal with its revenue and expense. Fiscal measure are important in any economy because when government change the measure of its income and expenditures, ठीक है, तो फिस्कल मेजर किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स उसको चेंज करती है। इनकम यानी कि टैक्स, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम तो वही है। एक्सपेंडिचर्स यानी होता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिस, मिलिट्री फोर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वेलफेयर। इट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। Budgeted excess of government expenditure over its revenue is specific known as fiscal deficits। ठीक है, गवर्नमेंट की एक्सपेंस ज्यादा है और सेविंग कम है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट्स, विच इज जनरली डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जिसको परसेंटेज के टर्म में जीडीपी पे डिफाइन करते हैं। द फिस्कल डेफिसिट इज ब्रिज बाय द गवर्नमेंट थ्रू मार्केट बोरोइंग, both short term and long term. A large fiscal deficit and consequent a higher borrowing by the government will push up interest rate in the economy and make it difficult for corporate borrower to access a fund। अब जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग करने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है? कॉर्पोरेट बोरोवर जो हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं प्राइवेट, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इज डेट्रीमेंटल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी ज्यादा इंटरेस्ट हाई होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उस देश के लिए खराब होता है। A country has trade and other contract with entity abroad which result in receipt and payment of fund। ठीक है, कोई भी कंट्री है जिनका अदर कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, दिस इंक्लूड पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड एंड अदर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। द करेंट अकाउंट, याद रखिएगा, करेंट अकाउंट, द करेंट अकाउंट बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट। अ कंट्री में हैव करंट अकाउंट सरप्लस अगर उनके पास रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, यानी कि हमको लेना कम है, देना ज्यादा है। ठीक है, और सरप्लस यानी लेना ज्यादा है, देना कम है। हायर fiscal deficit is proportion to the GDP caused by lack of competitiveness in trade or excessive consumption in negative commentary of the economy। Higher current account deficit CAD cause the national currency to weak relative to other currency। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उस देश की करेंसी उतनी ज्यादा वीक होगी अदर करेंसी से। दिस मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, जिससे क्या होता है? इंपोर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी एज कैपिटल गुड एंड कमोडिटी बिकम एक्सपेंसिव। इससे क्या होता है? कैपिटल गुड्स और कमोडिटीज भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इट रिड्यूस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ नेशन एंड मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव।
A depreciating currency make export of the nation more competitive and may help narrow the deficit. If country is seen as attractive investment destination, the capital inflow in the form of FDI and portfolio inflow will offset the CAD and protect the currency from devaluations. तो एक हो गया करंट अकाउंट। सेकंड होता है क्या है कि अगर कोई देश बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एफपीआई जो इनफ्लो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वालों का, वो होता है। उससे क्या होती है, करेंसी वहां की जो डीवैल्यूएशन जो उसका कम होना है ना, करेंसी गिरते जा रही है, उससे उसके डीवैल्यूएशन का खतरा प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, या ये समझिए कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है अगर वो कंट्री अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है तब। तो वैसा बनाने के लिए बहुत खर्चा भी करना पड़ता है ना देश को। एक्सपेंडिचर इज फंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मल्टीपल वे। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है बहुत ज्यादा, अब उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? पहला होता है ऑपरेशंस, टैक्सेशंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। सेकंड होता है बोरोइंग एंड सेल ऑफ असेट्स, या तो उधार ले लिए या जो असेट्स है गवर्नमेंट की उसको सेल कर दिए। While government try to balance between inflow and outflow based on its action, fiscal policies is being categorized as, पहला होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज। उसको कैसे कहते हैं? व्हेन गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्विलिब्रियम, यानी कि इनकम भी उतनी है एक्सपेंस भी उतना ही है तो बराबर में चल रहा है, तो न्यूट्रल। एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी यानी जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता है, खर्चा ज्यादा करता है। ठीक है, द पॉलिसी स्टेंस इज यूजली अंडरटेक ड्यूरिंग रिसेशन एंड स्लो मूविंग इकोनॉमी। जब इकोनॉमी रिसेशन में है या बहुत स्लो है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती, खर्चे बढ़ाती है। खर्चे बढ़ाती है तो अगर कोई खर्चा बढ़ा रहा है तो वो देश के लिए फायदेमंद होता है रिसेशन से, उसको इम्प्रूव कराने के लिए, यानी कि रिसेशन से या इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल मेजर व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर। गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है लेकिन इनकम उसकी ज्यादा है, तो ऐसा कब करती है गवर्नमेंट? जब उसको अपने डेप्ट को पेड करना है। ठीक है, या किसी भी असेट्स को एक्वायर करना है, या कोई कहीं की असेट्स है उसको एक्वायर करना है, तब गवर्नमेंट ऐसा करती है। यहां तक ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो प्लीज पूछ लीजिए।